Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. Basic Maths for All, day 29. Today we will continue with basic geometry. The other day we discussed about angles के बारे में हमने डिस्कस किया. आज उसी को अगर कंटिन्यू करते हुए बेसिक ज्योमेट्री के अंदर और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में काम आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विथ ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या संबंध होता है? सबसे पहले तो देखेंगे पैरेलल लाइन किसको कहते हैं. समानांतर रेखा बोलते हैं उसको. पैरेलल लाइंस क्या होता है? टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन के ऊपर अगर वो हो तो उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और दे शुड नॉट इंटरसेक्ट. मैं जानता हूं जैसे मैंने इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रहार आपके ऊपर किया, आप कहोगे सर हमारे समझ में कुछ नहीं आया. आपके इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं. देखिए एक बात आप याद रखिए कि जब भी तीन लाइन इस प्रकार से मिलते हैं, ये है लाइन L, ये है लाइन M और ये है लाइन L, तो whenever two lines are intersected by a transversal, आपको कुल मिलाकर 8 कोण मिलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. और इन कोण को अलग अलग नामों से जाना जाता है. If whenever two lines are intersected by another line, 8 angles are formed. These angles are particularly known by different names, and those names are alternate interior angles, corresponding angles, and interior angles on the same side of transversal. Sir, alternate angles किसको बोलते हैं?
अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, उसको अल्टरनेट बोलेंगे। एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों एक ही तरफ होगा, जैसे ये 2 और ये 3 है, ये 3 और ये 8 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 7 है। सर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? ये ट्रांसवर्सल रेशा कहा जाता है, इसकी सेम तरफ वाला 3 और 5, 4 और 6 कहते हैं। तो मगर बच्चों हमें इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपको कम ही काम आता है। मगर मैं आपको बड़ी सी बात एक बताना चाहता हूं कि whenever two lines are intersected by a transversal, whenever two lines are intersected by a transversal, 8 angles are formed. Those 8 angles are given different names. They are alternate angles, corresponding angles, interior angles on the same side of transversal. अब हमारा जो टॉपिक है वो इस लाइन के संबंधित नहीं है, हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में क्या संबंध है, तो हम एक एक करके पैरेलल लाइन के संबंध के बारे में बात करेंगे। जो पैरेलल नहीं है उससे हमारा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो हमें इस बेसिक मैथ में हम आपको बताएं। तो अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं बच्चों? अल्टरनेट एंगल आप देखिए, यहां मैं आपको बता दूं कि ए बी एक पैरेलल लाइन है, ए बी एक पैरेलल लाइन है बच्चों, और इस पैरेलल लाइन को दूसरा पैरेलल लाइन है सी डी। ए बी किसको पैरेलल है? सी डी को पैरेलल है, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, उसका नाम है पी, और ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो Z आकार में जो एंगल बन रहा है, आप देखिए मैंने यहाँ पर अलग सा एक फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए। Z आकार में जो एंगल बन रहा है 3 और 6, वो है अल्टरनेट एंगल। दूसरा एक Z आकार में एंगल बन रहा है 4 और 5, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। जहां पर भी Z फॉर्मेशन हो रहा है वो एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और वो एंगल कब इक्वल होगा? जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन टच करती है। सो इंग्लिश में अगर मैं आपको कहूं कि when two parallel lines are intersected by a transversal, alternate interior angles are equal. जब किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल टच करता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होगा। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होगा। सर ये हमेशा इक्वल होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइंस हो तो। पिछली बार जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर बनाया था वहां पर वो इक्वल नहीं होता है, ओनली पैरेलल लाइंस के लिए होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं एफ आकार में अगर हो तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए 2 और 6, आप देखिए यहां पर एफ आकार है। ये इसको अगर स्ट्रेट लाइन में समझूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किस एफ की बात कर रहा हूं। ये लाइन को अगर मैंने ऐसे सीधा ले लिया तो ये एफ आकार बन रहा है। तो ये तुम्हारा 2 और 6 जो एफ आकार है वो है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल। या दूसरा एफ आकार जो बन रहा है बच्चों वो है, आप देखिए यहाँ पर 2 और 6 एफ आकार है, 4 और 6 एफ आकार है। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 और 6 एफ का, यहाँ एफ का आकार है, यहाँ 2 और 6 उल्टा एफ का आकार है। नेक्स्ट आता है 1 और 5, ये भी एफ आकार में है। और नेक्स्ट आता है आपका 3 और 7, अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये 7 है, ये भी एफ आकार है। तो जहां पर भी आपको एफ आकार, जेड आकार अगर दिखाई दिया तो दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ यू सी इन द फॉर्म ऑफ एफ, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान इस तरह से होगी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान होगी z आकार से। तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। कब इक्वल होता है? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन टच करती है। When a pair of parallel lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. Alternate angles are also equal. और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है बच्चों तो लाइंस भी पैरेलल होती है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होता है तो भी लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लाइंस AB और PQ पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है इसको, इसीलिए इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर भी ये भी है ट्रांसवर्सल, इस बात को भूलिएगा मत। तो यहाँ ट्रांसवर्सल इक्वल होने की वजह से एफ आकार वाला जो 2 है वो 6 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा और 3 7 के बराबर होगा। सर ये सारे क्या हैं? दे आर पेयर ऑफ corresponding angles. When a parallel line is intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. तो पहली प्रॉपर्टी alternate angles are equal, दूसरी प्रॉपर्टी corresponding angles are equal. नेक्स्ट है interior angles on the same side of transversal. उसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं। अगर मैंने इस तरह से हाथ ढक दिया बच्चों तो सेम साइड में 1 2 3 4 एंगल बनते हैं, 2 4 6 8। मगर हमको कौन सा चाहिए? इंटीरियर चाहिए, यानी अंदर वाला एंगल चाहिए। तो अंदर वाला एंगल कौन सा है बच्चों? 4 और 6 है। अगर मैंने इस तरफ से ढक दिया तो 3 और 5 अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ वैसे 1 3 5 7 है, मगर अंदर की तरफ है 3 और 5। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल टच करता है बच्चों, तो अंदर के दो कोण हमेशा जोड़ने के बाद आपको एंगल, ये आपका जो 3 है और ये आपका जो 5 है, उसको मिलाओगे आप तो 3 और 5 होगा 180। एंगल 3 प्लस एंगल 5, देखिए अंदर की तरफ वाला कोण है, अंदर की तरफ। वैसे बाहर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 7 है। मगर हमको कौन सा चाहिए? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और अंदर कौन सा है? 3 और 5। बाहर की तरफ कौन सा है? यहाँ पर देखो आप, इस तरफ वाला 4 है और 6 है। तो 4 प्लस 6 कितना होगा? 180 होगा। तो बाहर की तरफ वैसे आप अगर इसको बढ़ा दोगे तो ये होगा 2 और ये है 8, मगर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट किसमें है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, नाम में ही है। किसके सेम साइड में? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। कहां पर? अंदर। समझ रहा है? अंदर यानी इंटीरियर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, एक साइड ही में होना चाहिए। अंदर की तरफ, ट्रांसवर्सल की तरफ, अंदर की तरफ वाले दोनों एंगल 180 होंगे। यानी क्या होगा? 4 प्लस 6 180 होगा और 3 प्लस 5 कितना होगा? 180 होगा। यानी आज हमने बेसिक मैथ्स के अंतर्गत 3 बातें हमने सीखी, या 4 बातें मैं कहूँगा, कि दो लाइन को जब एक लाइन मीट करता है तो कुल मिलाकर 8 एंगल बनते हैं। मगर अगर वो लाइन पैरेलल होती है और उसको अगर वो ट्रांसवर्सल टच करता है तो हमें अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं, उसकी पहचान कैसे किया जाए? उसकी पहचान अगर आपको करना है तो Z अल्फाबेट सीधा, उल्टा Z या इस तरह का Z, तो किसी भी जिगजैग मैनर में Z अल्फाबेट आपको ढूंढना है और वो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट एंगल को कैसे ढूंढ सकते हैं? दूसरी बात होती है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो F आकार में होता है। सीधा F हो सकता है, उल्टा F हो सकता है, या रिवर्स ऑर्डर में F हो सकता है।
तो पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे ढूंढा जाए, और दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तीसरी बात है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाला अगर एंगल होता है और वो अंदर वाला एंगल होता है, तो अगर लाइन पैरेलल होता है तो उन दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो ये बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं। काफ़ी बार हमारे बच्चों को अल्टरनेट एंगल ही पता नहीं चलता है, या करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने में दिक्कत आती है, या इंटीरियर एंगल ढूंढने में दिक्कत आती है। जाते जाते बता दो, अल्टरनेट एंगल यानी Z, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी F, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ने अंदर की तरफ दोनों एक ही साइड वाले एंगल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको समय समय पर थ्योरम्स के प्रूफ में आपको काम आएगी। दैट्स ऑल।